Hello children, how are you all? We will discuss today about custard. Oh, this is not a lecture on food item. आपको तो कस्टर्ड का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा. कस्टर्ड वाली आइसक्रीम एंड अदर डिशेस आपको याद आ गई होंगी. आप 10th में आपको भूख बहुत लगती है, आप सब फूडी हैं, आई नो, बट द कस्टर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज़ द ड्रैगन. आई एम गोइंग टू टेल यू द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन 10th क्लास. मज़ा आएगा, बहुत मज़ा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पोम है ये, बहुत मज़ा आने वाला है. एंड देयर इज़ लॉट्स ऑफ लेसन इन इट. ह्यूमर इन अबंडेंस इज देयर इन दिस पोम. ह्यूमर इज इन राइम स्कीम. ह्यूमर इन the names of its characters in the poems, and humor in the wrong spelling used by the poet. देखिएगा आप, you will enjoy this because this poem is written as a ballad. Ballad is a song or a poem that tells a story, that narrate tales of courage, valor and heroism. This is humorous. Comic elements are added by the poet in this ballad, so this is called a parody. It is close to a parody. You will see this interesting ballad, whimsical fantasy it is, in which Ogden Nash has added rhyme and music in this poem. You will see when we study these 15 stanzas of the poem, where 14s are having rhyme scheme with A, A, B, B, and para number 13 you will be seeing is having rhyme scheme of A, A, B, B, and C, C. You will see 4 characters here: ink, blink, mustard, custard. See the rhyme scheme in these character names also. Humorous. Humor element in abundance I was talking about. This is, देखिए आप, ink, blink, A, mustard, custard, B. Same is the rhyme scheme of the poem as in the names of characters. अब ये भी देखिए आप, पर्सनैलिटी भी दिखाते हैं उनके. ink, black kitten is there, ink as black as ink. सो द नेम आप देखिए आप कितना अच्छे से रखा है. ब्लिंक, माउस का पता ही नहीं लगता, कभी कहीं वो ब्लिंक करता है. मस्टर्ड देखिए आप, येलो डॉग रखा है उसने, वो इतना शार्प है. दैट मस्टर्ड इज नेम्ड एज मस्टर्ड क्योंकि उसका एक तो कलर से भी वो है कि जो मस्टर्ड फ्लावर होता है सरसों के फूल का पीला, तो इसलिए, और वो इतना शार्प भी आप देखेंगे पोम के अंदर दिया गया है. एंड फाइनली देयर इज कस्टर्ड द ड्रैगन. इसका नाम देखें कि ड्रैगन हैज़ नो स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर. जैसे कस्टर्ड है, किसी में भी मिलाओ वही बन जाता है ना. तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कस्टर्ड का करेक्टर की कोई स्ट्रेंथ नहीं है. सो द ग्रेट पोम इज हियर टू स्टडी बाय पोइट हु इज इनइमिटेबल. Ogden Nash, born 1902 in New York, who was a school teacher before becoming a copywriter, who wrote 400 pieces of comic verse. He is best remembered for his nonsense poetry, so this one is before you. His first collection of poems entitled Hard Lines came in 1931, and in 1962 Girls Are Silly. You can enjoy those, and let's have fun by enjoying this profound poem which gives us insight into human behavior. Yes, we are going to discuss about theme as well, that appearances are deceptive. We should not judge anyone by appearances, like they were timid but boasted to be brave. All these ink, blink, mustard and their mistress Belinda. And you will see assessment of people about themselves, उन पर नहीं जाना है, and others is not always true. We should not judge others on their own claims. वो जो अपने बारे में कह रहे हैं, नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा भी, because it's time of adversity when true evaluation of a person can be made. And those who are brave, actually brave, like Custard in this poem, need not boast of their bravery as was done by Dragon in this poem. Their mettle is proved only when they encounter a dangerous situation. Here all you will see ink, blink, mustard and Belinda pride themselves, and they mock
poor custard for his timidity, but when the real danger comes, all other run away, and it was only custard who fought ferociously and swallowed the pirate. And one thing more that poet has raised is that these days, this time, people with oily tongue, time is theirs, but ultimately these are our actions which are counted, which are rewarded and not words. यहाँ पर भी आप देखेंगे वो बोलते रह गए, लेकिन जिसने एक्ट किया. नेवर अंडर एस्टिमेट टैलेंटेड पर्सन, जो आजकल हो रहा है, टैलेंटेड का यूज़ किया जाता है, इसमें भी आप देखेंगे लास्ट में वही होता है. द पोम एंड्स आयरनिकली आफ्टर द डेंजर इज पास्ट, एवरीवन वंस अगेन बिगिंस टू बोस्ट अगेन about their courage. Ironically, custard who fought like a hero against the pirate agrees. देखिए आप उसकी भी humility देखिए, that everyone वो कहता है कि else is braver than he is. So we should not undermine anyone. We should never let others feel down. We should be free from pride or arrogance. This is a humble nature of dragon that poet wants to convey this message. Be it that your merit and real value may not be recognized by your unwilling rivals, but the time will come, time will take you high your own. You keep doing good things. So this is the message theme of the poem. So this is all about that we will be enjoying by studying this poem stanza wise. And before going further, I would like to say you to subscribe to my channel so that you can get notification of all my videos. बने रहें अंत तक मेरे साथ, क्योंकि इस poem के लास्ट में आने वाला है एक क्विज मैं आपको देने वाला हूँ. और वन मोर लेसन जो आपके सिलेबस में है, दिसंबर के सिलेबस में 10th क्लास हरियाणा बोर्ड की आपको फिगर ऑफ स्पीच आता है, सिमिली मेटाफर. तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये पोइम जो है फिगर ऑफ स्पीच से भरपूर है. आपने अगर फिगर ऑफ स्पीच सीखना है तो उस पर कोई लेक्चर नहीं है, आप बस द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पढ़ लीजिए. मेरा दावा है इसके अंदर सब कुछ है. सो वी स्टार्ट एंजॉइंग दिस पोम स्टैंजा 1. Belinda lived in a little white house, and a little black kitten, and a little grey mouse, and a little yellow dog, and a little red wagon, and a realio trulio little pet dragon. देखा आपने? फिगर ऑफ स्पीच ऑब्जर्व करना, मीनिंग के साथ में आ रहा हूँ. Belinda lived in a little white house, छोटे से वाइट घर में वो रहती है. कौन कौन रहते हैं उसके साथ? Who else are there with her? With a little black kitten, छोटा सा एक बिल्ली का बच्चा, and a little grey mouse, और ग्रे कलर का एक माउस है, and a little yellow dog, और एक पीला डॉग है, and a little red wagon, और उनके पास एक लाल रंग की गाड़ी भी है, and a realio trulio little pet wagon, और एक और है सच में असली चीज़, छोटा सा सच में पैट ड्रैगन. ड्रैगन भी है, एक पालतू बनाया हुआ है, पैट ड्रैगन. अब यह आप देखिए, आप पैट ड्रैगन, अगर वो ड्रैगन है तो पैट नहीं हो सकता, पैट है तो ड्रैगन नहीं हो सकता. दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन, वेयर टू वर्ड्स आर अपोजिट, वेयर टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर यूज्ड. As I have already told you, you will see lots of alliteration in even this stanza 1. You will see in this poem alliteration, repetition, poetic license, anaphora, exaggeration, personification, onomatopoeia, oxymoron, simile, metaphors, personification, transferred epithet. Oh my God! आपको फिगर ऑफ स्पीच पर कोई और वीडियो नहीं देखना है, यही पोम पढ़नी है आपने, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. और मेरा दावा है कि आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है. तो आप पैट ड्रैगन में देख रहे हैं ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ है, टू वर्ड्स अपोजिट जहाँ यूज़ होते हैं. राइम स्कीम की बात कीजिए, हाउस माउस एंड वैगन ड्रैगन, ए बी बी, जो सारी पोम में यही रहने वाली है एक्सेप्ट वन स्टेंजा. आउट ऑफ 14 आर विद दिस स्कीम, ए बी बी. या और देखिए आप फर्स्ट लाइन देखिए आप, दीज रेड आईज, ई साउंड, बेलिंडा लिव्ड इन लिटिल वाइट, सो मैनी आईज आर देयर. व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस वावल साउंड, this repetition of similar vowel sounds
that is taking place in two or more words in proximity to each other is called assonance. Yes, you are right. एलिट्रेशन का ही एक रूप है ये, कंसोनेंट हो या वोवल साउंड हो। एजोनेंस आ रहा है पहली लाइन में। और देखिए सो मैनी लिटिल, 6 नॉट 1 2 3 बट 6 लिटिल आर हियर। ये क्या है? ये भी अपना देखिए कि कैसे कोई पोइट अपनी क्रिएशन को ऑर्नामेंट कर रहा है। जैसे एक लेडी होती है, वो साज सज्जा करती है, क्या क्या वो लगाती है, ऐसे ही ये जो पोइट होते हैं अपनी क्रिएशन को, अपनी पोम्स को ऑर्नामेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा पेट ड्रैगन में ऑक्सीमोरोन आ गया पहली लाइन में। इफ ऑगदन नैश हैज यूज सो मैनी आईज, दिस इज कॉल्ड एजोनेंस। एंड सो मैनी लिटिल आर देयर, दिस इज कॉल्ड पुनरावृत्ति, रेपिटिशन। वर्ड्स, लाइन्स, फ्रेजेस, those are repeating at intervals is called repetition. To emphasize a point that all were little, house was little, that kitten was little, that dog was little, Belinda was little. Yeah, so her house and inmates all were little. So little repetition दे रहा है यहाँ पर हमें। And starting of line number 3 and 4 देखिए with the same word and, where you can see it is repeating same beginning with and for emphasis or rhythm, whatever reason is called, this is called anaphora. बार बार लाइन की शुरुआत जो है, शुरुआत में एंड आ रहा है, तो दिस इज लाइन नंबर 3 और 4 में एनाफोरा आ रहा है। और रियलियो ट्रूलियो, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? आई ओ लगाया है, ऐसा तो कोई वर्ड मैंने तो सुना नहीं अपने करियर में। दिस इज कॉल्ड इन फिगर ऑफ स्पीच पोइटिक लाइसेंस, ब्रेकिंग ऑफ पोइटिक लॉज, कि ये क्या कर रहे हो भैया, स्पेल मिस्टेक का भी यूजिंग इनकरेक्ट स्पेलिंग इज अलाउड, दिस इज कॉल्ड लाइसेंस्ड टू चेंज स्पेलिंग और वायोलेटिंग ग्रामर रूल्स टू गिव राइम्स, to give emphasis or humor, realio trulio, not really or truly. IO is added, it is allowed, this is called poetic license. Yes, so many you can see in line 1 it is assonance, in so many little repetition, and starting of line number 3 and 4 with and it is anaphora, and pet dragon it is oxymoron, and rhyme scheme with AABB. So many things to ornament this first stanza. Great, let's move to second one now, कि उन pets के नाम देख लेते हैं क्या क्या हैं। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him custard. K. So many. देखिए line 4 में देखिए आप, again and again k sound. This is consonants. Now the name of the little black kitten was Ink. छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम क्या था? Ink था, little था वो, and the little grey mouse she called him Blink. और जो माउस था ग्रे कलर का था और उसका नाम वो क्या लेती थी? ब्लिंक, इंक, ब्लिंक, ए। एंड द लिटिल येलो डॉग, और छोटा सा पीले रंग का डॉग था, हु वॉज एज शार्प एज मस्टर्ड। एज शार्प एज मस्टर्ड मीन्स ये सिमिली आ रहा है यहाँ पर। यस, आप देख सकते हैं वेयर टू थिंग्स देयर सिमिलैरिटीज आर देयर, similarities are being shown between the two things. It is drawing resemblance with the help of as. So you can say this is simile is used here. और वो इतना तीखा था, शार्प था, तेज था, वो जितना मस्टर्ड का आप उसको चेक कर देखो, टेस्ट करो तो उतना कलर भी उसका मस्टर्ड रखा है। बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। क और ड्रैगन क्या था? एक कावर्ड था। वो कहा करते थे, उनका क्लेम था कि ये कावर्ड है, था कि नहीं था वो हम आगे देखने वाले हैं। एंड वो क्या बुलाती थी उसको? कस्टर्ड। सो आप देख सकते हैं लाइन नंबर 2 और 3 में देखिए फिगर ऑफ स्पीच की हम बात करें। लाइन 1 में देखा आपने लिटल, 2 में लिटल, 3 में लिटल। सो इट इज रेपिटिशन एंड पुनरावृत्ति हो रही है लिटल। और लाइन नंबर 2 और 3 की शुरुआत कैसे हो रही है? एंड द लिटल से शुरू हो रहा है। यस, तो ये क्या कहलाया है? एनाफोरा।
where beginning is the same in two lines with and a little, तो गाना देने के लिए, लय देने के लिए, राइम देने के लिए उसको। लाइन 4 में आपने देखा एलिट्रेशन आ रहा है, where consonant sounds at the beginning of words or stretched syllables are there, so this is called alliteration. So you can see simile is there, anaphora is there, repetition is there, and alliteration is there, right? We go to para 3 now. Let's see the description of dragon now. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and realio trulio, daggers on his toes. Oh my God, क्या क्या था उसके पास, कैसा दिखता था? Oh my God, देखिए आप, description of dragon stanza 3, great. Custard the dragon, उसके दांत कैसे थे? He was having sharp teeth and spikes on top of him. देख सकते हो आप टेल पर, ये spikes कहलाते हैं. These pointed pieces on its tail you can see is called spikes on top of him, and scales underneath. Scale क्या होते हैं? Bony plates protecting the skin of reptiles. जैसे स्नेक में आपने देखा होगा ना, those fine lines, ठीक है, तो वो थी. and mouth like a fireplace, और उसका मुंह कैसा है? उससे आग निकलती है, कुछ ऐसे आप देख रहे हैं. चिमनी फॉर ए नोज, और नाक उसकी चिमनी है, जैसे चिमनी में से धुआं निकलता है ऐसे नाक में से भी उसके धुआं निकलता है. एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स, और उसके टोज जो है ना उसमें नेल नहीं है, क्या है वो? छुरियां हैं. देख सकते हैं आप, डैगर होता है शार्प नाइफ है, कोई उसके हत्थे चढ़ जाए तो ऐसे फाड़ दे वो 1 मिनट में, ठीक है. तो आप देखिए इसमें फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं. डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रैगन में क्या यूज़ किया है इसने, आप देख सकते हैं सिमिली और मेटाफर दोनों का यूज़ हुआ है. दिसंबर के सिलेबस में है आपके ये सिमिली और मेटाफर क्या होता है, तो आप स्टैंजा 3 पढ़िए, आपको पता लग जाएगा. देखिए 2 इसके अंदर मेटाफर यूज़ हुए हैं और 1 सिमिली यूज़ हुआ है. यस, सिमिली देखिए आप, जिसमें माउथ लाइक ए फायर प्लेस, माउथ कैसा है उसका? लाइक यूज़ किया इसमें. हेयर सिमिलैरिटीज बिटवीन 2 थिंग्स आर देयर, कि माउथ कैसा है उसका? फायर प्लेस जैसा है. रिजेम्बलेंस इज बीइंग ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ लाइक. उपमा अलंकार सिमिली दिया गया है. और चिमनी फॉर ए नोज, चिमनी में लाइक या एज यूज नहीं हुआ है, तो यहां पर मेटाफर, वेयर 2 थिंग्स आर नॉट अलाइक, यस, बट हैव समथिंग इन कॉमन. या फर्क देखिए आप, माउथ लाइक अ फायर प्लेस है, लेकिन यहां पर लाइक नहीं है. नथिंग इज अलाइक हियर, 2 थिंग्स आर नॉट अलाइक बट हैव समथिंग इन कॉमन. दिस इज मेटाफर. एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो नाखून है ना वो छुरियों जैसे नहीं है, वो छुरियां ही हैं. डैगर्स ऑन हिज टोज, यस, शार्प नाइफ हैं, नेल नहीं है बाबा. तो यहां पर भी 2 थिंग्स आर नॉट अलाइक, उसने तुलना नहीं की है, उसको उसका रूप दिया है. बट हैव समथिंग इन कॉमन, छिल देंगे वो आपको. यस, सो दिस इज मेटाफर, 2 मेटाफर्स एंड 1 सिमिली इज हियर. एंड रियलियो ट्रूलियो, जो फिर से आईओ लगाया है, पोइटिक लाइसेंस यूज किया है. ये ब्रेकिंग है ऑफ पोइटिक लॉज की, लाइसेंस लिया हुआ है ऑग्जन नैश ने टू चेंज स्पेलिंग फॉर द शेक ऑफ राइम और emphasis or whatever, or to add humor. ठीक है, so this was stanza 3. So in this video, these 3 stanzas you enjoyed. I am coming with the next in my 4th stanza, where we will do explanation and we will discuss figures of speech. Click this button, it will take you to my next video where we are enjoying stanza 4. Come, I am waiting. Thank you.